Hello students, welcome back to my channel. Yesterday I already completed important portion of history. So today I am taking a class in civics. That is the Union Judiciary, the Supreme Court, the High Courts and the subordinate courts. I am anticipating a question from the Supreme Court for this time. Okay, anyway, so सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये तीनों हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट. द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज ए सिंगल वेल lit setup for the whole country. Single well lit system for the whole country. Each lower court is subordinate to the higher court with supreme court at the apex. Okay. Thus, Supreme Court is the highest court of appeal in the India. In India, मतलब लोअर कोर्ट से कोई अपील नेक्स्ट लेवल को, नेक्स्ट हायर लेवल कोर्ट को जाएगा, नेक्स्ट हायर लेवल कोर्ट में नेक्स्ट हायर लेवल कोर्ट को जाएगा. फाइनल माने बॉडी होता है या फाइनल हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, so the Supreme Court of India is the highest court of appeal in the India. We have a single judicial hierarchy or setup for the whole of the country. The Supreme Court of India is the highest court of appeal. We have a single judicial setup for the whole of the country. Total country के लिए एक single judicial system from lower level to upper level. The Supreme Court of India consists of a Chief Justice and some other judges. अच्छा, the judges of may changes from time to time. Now the judges of Supreme Court are 33 and we including Chief Justice total 34. The Chief Justice of the Supreme Court or the Chief Justice of India at present is D.Y. Chandrachud. D.Y. चंद्रचूड़. ये भी इंपोर्टेंट याद रखना. अच्छा, सो द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. The President consult the Chief Justice of Supreme Court before appointing the judges to it. वो जजेस सबको अपॉइंटमेंट करते टाइम वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते. ओके, लेकिन चीफ जस्टिस को जब अपॉइंटमेंट दिया जाता उसी टाइम में प्रेसिडेंट किसके साथ कंसल्ट करेगा? कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट कर सकता. ओके, ये जजेस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट कर सकता. माने जब चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट किया जाता तब अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करके चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देते हैं. कोई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसी टाइम में प्रेसिडेंट क्या करते? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंटमेंट करते हैं. ओके, देन क्वालिफिकेशन. ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव वर्कड एज ए जज इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट कंटिन्यूअसली फॉर 5 years, और ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years. कोई हाई कोर्ट में एडवोकेट एटलीस्ट 10 year के लिए होना चाहिए, या ही शुड हैव जज ऑफ एनी ऑफ द हाई कोर्ट कंटिन्यूअसली फॉर 5 years. 5 साल कोई हाई कोर्ट में जज हो सकते या 10 साल एडवोकेट भी हो सकते. ओके, देन द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस वर्क टिल 65 years. They can removed by the president on ground of proven misbehavior or incapability if parliament possess a special resolution to the effect.
if parliament possess a special resolution to the effect, then the chief justice can be the judges and the chief justice can be removed from the office by the president of India. Pay and emolument. The chief justice and other judges of Supreme Court are paid a monthly salary as decided by the parliament. They get other allowances also. The salaries and allowances are given to the chief justice and other judges from the consolidated fund of India in order to save them from the interference of the legislature. क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर से वो इंडिपेंडेंस के लिए तो उन्हें सैलरी गवर्नमेंट नहीं देता, वो कंसोलिडेटेड फंड से ही सैलरी लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 पॉइंट याद रखना। हाउ यू कैन से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन होते हैं, एक जुडिशियरी, एक एग्जीक्यूटिव, सेकंड होता है फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर नियम बनाता है, एग्जीक्यूटिव नियम के अनुसार काम करता है, और ये दोनों डिपार्टमेंट सही सलामत काम करते हैं या नहीं उससे तदारक करता कौन है? जुडिशियरी। ओके, तो लेकिन ये जुडिशियरी सिस्टम इंडिया में पूरा इंडिपेंडेंट, इन दोनों और दूसरे 2 ऑर्गन का इनका ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और नहीं होना चाहिए। सो हाउ यू कैन से द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फर्स्ट हम कहेंगे द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी और सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एंश्योर्ड in the following ways. First, security of service. They have secured service. Security of pay and allowances. No discussion in the legislature about the conduct of the judges. No practice after retirement. Free decision and decrees. ये सब important point है। हम कह सकते लेजिस्लेचर और माने एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होते हैं। इसकी माने इनका रीजन क्या होता है? 3 पॉइंट कम से कम याद रखेंगे। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, फ्री डिसीजन एंड डिक्री। दे कैन डिलीवर फ्री डिसीजन एंड डिक्री। जुडिडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट डू मीन बाय जुडिडिक्शन? द लेवल अप टू व्हिच the Supreme Court put its power is called jurisdiction. The level up to which the Supreme Court put its power is called its jurisdiction. So हम कहेंगे jurisdiction and powers of the Supreme Court. First होता है original jurisdiction, एक original jurisdiction, एक appellate jurisdiction. In original jurisdiction, what do we mean by original jurisdiction? A very important. Original jurisdiction means the power to hear and determine a dispute in the first instance. Original jurisdiction means the power to hear and determine a dispute in the first instance. मतलब वो जो केस कोई दूसरे कोई अदर कोर्ट को जाता नहीं, it can directly come to hear from the Supreme Court only. जैसे impeachment of fundamental rights. ओके, हमारा फंडामेंटल राइट अगर इम्पीचमेंट हुआ तो दूसरे कोई कोर्ट इसको रिसीव नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में आ जा सकते। ये सब हो गया, क्या होता है? ओरिजिनल जुडिडिक्शन। सो इम्पीचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में ओरिजिनल जुडिडिक्शन में आता है, हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, बट सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। ओके, देन ओरिजिनल जुडिडिक्शन में क्या क्या आता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ए डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड 1 or more स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट और एकाध स्टेट के साथ जो झगड़ा होता है तो उसी केस में 2 इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी केस में क्या होता है? वो जा सकता
ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट रिलेटिंग जुडिशियल राइट्स। एक माने वन मोर स्टेट का अंदर अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ वो खाली सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जाएगा। हाई कोर्ट का इसमें कुछ पावर नहीं है। अच्छा, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स if there is violation of fundamental rights. What do you mean by writ? A writ is an order from a judicial authority. वो एक रीट भेजते हैं जे ओपोनेंट पार्टी के पास। Why you impeached the fundamental right of that person? So give show cause notice. So a writ will come. That is writ. Writ means an order that comes from a judicial authority. Okay. So impeachment of fundamental rights होने पर this case can be here only this माने here only from the Supreme Court and it is the original jurisdiction of the Supreme Court. Okay. Then appellate jurisdiction, एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में स्टेट और स्टेट का बीच में जो माने डिस्प्यूट रहता है, सेंटर या एक आधे स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट रहता है, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन अप्लाई कर सकता है। या इम्पीचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में वो आता है, इम्पीचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद एपीलेट जुरिडिक्शन। एपीलेट जुरिडिक्शन मीन्स पावर टू एक्सेप्ट appeals against the judgment given by any other court, lower court of the country. जो लोअर कोर्ट ऑफ द कंट्री, मैंने कहा इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इज ए सिंगल नीट ऑफ हायरार्की सिस्टम फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल विथ सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स। सपोज लोअर कोर्ट कुछ माने लोअर कोर्ट में कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अब ये हायर कोर्ट को जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट को जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, हाई कोर्ट को जा सकता है। हाई कोर्ट में कोई सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो अब सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, व्हिच इज द फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ओके। एपीलेट जुरिडिक्शन मीन्स पावर टू एक्सेप्ट अपील्स अगेंस्ट द लोअर कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अपील। It is the court which may change the decision or reduce the sentence passed by any lower court. Lower court में जो डिसीजन दिया जाता बा और एनी सेंटेंस अगर किसी को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। इट कैन चेंज द सेंटेंस और चेंज द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। The Supreme Court can be said the final court of appeal. क्वेश्चन आ सकता, हाउ यू कैन से द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ओके। सो इन क्रिमिनल केसेस और इन एपीलेट जुरिडिक्शन में क्रिमिनल केस में कौन सा केस आता है और सिविल केस में कौन सा केस आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल केस में भी कौन सा केस आता है हम बताएंगे। वो तीन प्रकार होते हैं, क्रिमिनल केस अपील हो सकता है, एक सिविल केस अपील हो सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस अपील हो सकता है। इन क्रिमिनल केसेस अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट इन टू टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। क्रिमिनल केस में क्या होता है, पॉइंट 1, where a lower court acquits an accused and the high court reverts this order and sentences the accused to death. अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को छोड़ दिया था लेकिन वो फिर अपील किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट लेकिन उससे डेथ सेंटेंस दी, तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो विन कर गया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको क्विट कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट इससे डेथ सेंटेंस दिए। वो हाई कोर्ट में अपील किया तो हाई कोर्ट इसको क्या किए, अच्छा डेथ सेंटेंस दिए। तब लोअर कोर्ट का जजमेंट को हाई कोर्ट रिवर्स कर दिए। उसी केस में वो जाके सुप्रीम कोर्ट का एपीलेट जुरिडिक्शन में अपील कर सकता है। ओके। सेकेंड,
where a case is withdrawn by the High Court from a subordinate court and sentences the accused to death. सपोज हाई कोर्ट कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केस होता है, हाई कोर्ट उससे कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये केस थोड़ा मजबूत केस होता है, तुम मुझे विचार करने दो. ओके, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से विथड्रॉ कर लिया, लेकिन इसके बाद उसे डेथ सेंटेंस दे दिया. तो उसी केस में वो जिसका ऊपर डेथ सेंटेंस इल्जाम लगा गया वो अपील कर सकता सुप्रीम कोर्ट में. ओके, तो अब इनके सब डेथ सेंटेंस क्रिमिनल केसेस आर ड्रिवन टू द सुप्रीम कोर्ट एज एपीलेट जुडिडिक्शन. In civil cases, appeals lie to the Supreme Court if the High Court certified that a case involves a substantial question of law and that in the opinion of the High Court, the said question need to be decided by the Supreme Court. सपोज कोई भी हाई कोर्ट वो विचार किया जे ये केस दैट इज आउट ऑफ माई कस्टडी, माने ये केस मैं विचार करना लायक नहीं हूँ, देन द हाई कोर्ट में सेंड इट टू सुप्रीम कोर्ट फॉर सब्सटेंशियल जजमेंट. ओके, देन इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस all cases irrespective of nature where a certificate is issued by the High Court that it involves an important point of law and needs interpretation of the Constitution can be brought before the Supreme Court. Suppose constitutional cases में suppose interpretation of constitution में कोई चेंज वगैरह होगा, वो माने ये इसको सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता because it is the final interpreter of the country. Okay, तब ये appellate jurisdiction हो गया. So mention two power of the Supreme Court which is not enjoyed by any other court. जैसे मैंने कहा impeachment of fundamental rights, वो ओरिजिनल जुडिडिक्शन हाई कोर्ट का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, लेकिन कुछ पावर होता है वो हाई कोर्ट के पास नहीं रहता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास रहता. The Supreme Court enjoys the exclusive jurisdiction in settling dispute between center and a state or between states. Okay, in settling dispute in connection with the election of president and vice president of India. Okay, then enforcement of fundamental rights like high courts, Supreme Court had the power to issue orders or writ to the offending party when it feels there is enforcement of fundamental rights. If in any case there is enforcement of fundamental rights, then if that case goes to the Supreme Court as original jurisdiction, then the Supreme Court has the power to send writ, मतलब a judicial order to the offending party. Then advisory jurisdiction. The Supreme Court can advise any government department, legislature, the president or the council of ministers whoever seeks it, but the advice rendered by the Supreme Court is not binding on the seeker. Was a final माने authority of India so far judicial system is concerned, Supreme Court किसी कोई भी बॉडी को, कोई भी ऑर्गन को, वो हो सकता लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो, किसी को भी वो एडवाइस दे सकता, लेकिन दैट एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सीकर. ओके, देन रिवाइजरी जुरिडिक्शन. द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर विथ ए व्यू टू रिमूव एनी मिस्टेक और एरर दैट माइट हैव क्रेप्ट इन द जजमेंट और ऑर्डर. अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दिए, थोड़ी दिन बाद इसको भी नोटिस लगा सकते जो जजमेंट कुछ करेक्शन होगा. ओके, तो अब ये भी हो सकता. अच्छा, कोई अगर एक जजमेंट दे दिए, इसको भी वो रिव्यू कर सकते, वो माने जजमेंट में वो फील किए वो जजमेंट में कुछ रिव्यू होना चाहिए, सेकंड टाइम इसको भी वो रिव्यू कर सकते.
Then Supreme Court is the court of record. Important question. How you can say the Supreme Court is the court of record? The Supreme Court act as a court of record. All decisions and decrees issued by the Supreme Court itself are duly printed and kept in record for future reference of the court as well as for the lawyers. फ्यूचर रेफरेंस के लिए सारे चीज वहाँ रिकॉर्डेड होके सुप्रीम कोर्ट में रह जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जज उससे रिफर कर सकते, लॉयर भी उससे रिफर कर सकते. इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर आल्सो केप्ट इन रिकॉर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. जो हाई कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया जाता उससे भी सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड करके रखते फ्यूचर रेफरेंस के लिए. देन जुडिशियल रिव्यू. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ यू कैन से द सुप्रीम कोर्ट controls by the legislature control the Indian judicial system controls both legislature and executive. by supreme court both legislature and executive को control कैसे करता? This is very important. The supreme court has the power to review all laws, executive orders and ordinance if these are found to be inconsistent with the provision of the constitution. even भी ordinance the president जो इशू करते, सपोज सुप्रीम कोर्ट फील किए दिस इज नॉट in accordance with the provision of the constitution, then the supreme court has the power to declare them null or void. बोलेंगे वो ठीक नहीं है. thus it controls both legislature and executive. legislature मतलब नियम बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब नियम को पालन करना, ऑब्जर्व करना, नियम के अनुसार काम करना. तो अब ये दोनों अभी माने ये दो सिस्टम को अगर ये अभी होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट अभी बंद कर देंगे, कहेंगे ये दोनों जो नियम बनाए वो नियम ठीक नहीं है, तो अब यू शुड नॉट प्रोसीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू माने द लॉज ऑलरेडी established by you. Okay, so Supreme Court has the power to control both legislature and executive. So the Supreme Court is the guardian of the Constitution. The Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. Thus it is the guardian of the Constitution. Okay, Supreme Court complete हो गया. Then High Court. In India at present there are 25 high court. In some state, one more state enjoy na have one high court, like हरियाणा एंड पंजाब वन हाई कोर्ट, एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट जो होता है वो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सबके लिए एक हाई कोर्ट गुवाहाटी में होते हैं. ओके. तो अब चीफ जस्टिस एक होते हैं जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट देते हैं. अच्छा, द नंबर ऑफ जजेस में वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्वालिफिकेशन: सिटीजन ऑफ इंडिया, should work as a judge in any court of India not less than 10 years. Okay, or have been a advocate of a high court continuously for at least 10 years. एडवोकेट जो हाई कोर्ट में होंगे कंटिन्यूसली 10 साल तक होना चाहिए. द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये तो सुविधा बात है. तब जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके अच्छा प्रेसिडेंट क्या करते, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सब अपॉइंटमेंट देते हैं. और ऑल्सो गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, इन दोनों के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हैं. द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए जब अपॉइंटमेंट करेंगे उसी स्टेट का गवर्नर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते. हाई कोर्ट का जजेस को अपॉइंटमेंट करते बहुत माने हाई कोर्ट उसी स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, गवर्नर उसी स्टेट के और
क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वो तीनों के साथ कंसल्ट करके जजेस को अपॉइंटमेंट देते हैं। कंडीशंस ऑफ सर्विस, वो 62 इयर्स, वो माने द जजेस कैन होल्ड ऑफिस अप टू 62 ईयर। सेम थिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट, a judge can be removed by the president on the ground of proven misbehavior or incapability if parliament passes a resolution with a special resolution to that effect। अगर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ तो वो जजेस रिमूव हो सकते हैं। पे एंड एनुलमेंट, मैंने कहा था दिस इज गिवन बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू सेव द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, तो इसीलिए उन्हें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनका इंटरफेरेंस इनके साथ नहीं है, इसलिए कंसोलिडेटेड फंड से उन्हें पेमेंट मिलता है। पावर्स ऑफ जुडिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, फर्स्ट होता है ओरिजिनल जुडिडिक्शन, इसके बाद एपीलेट जुडिडिक्शन। सो ओरिजिनल जुडिडिक्शन, व्हाट इज ओरिजिनल जुडिडिक्शन, लाइक सुप्रीम कोर्ट सेम थिंग। तो इसी में ओरिजिनल जुडिडिक्शन में क्या क्या चीज आता है। सो केसेस माने रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, हम जानते हैं इम्पीचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दिस इज ओरिजिनल जुडिडिक्शन फॉर बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हियर आल्सो द केसेस रिलेटिंग टू इम्पीचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डाइवोर्स, विल्स, मैरिज कैन बी brought directly as original jurisdiction to the High Court. Every High Court has the power to interpret the Constitution. सपोज जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए तो हाई कोर्ट हैज आल्सो द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट। दिस पावर इज नोन एज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, then appellate jurisdiction, same thing like supreme court। what is appellate jurisdiction, क्वेश्चन आ सकता है, तुम लिखेंगे same thing like supreme court। अच्छा, appellate jurisdiction में क्या होता है, इन सिविल केसेस हाई कोर्ट माने appellate jurisdiction में लोअर कोर्ट से जो अपील होता, इसके बाद मैंने कहूंगा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कोर्ट होता है वो होता है लोअर कोर्ट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जब डिस्ट्रिक्ट जज या एनी अदर कोर्ट का जो अपील होता है वो अपीलेट जुडिडिक्शन में हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते। अच्छा, सो द जुडिडिक्शन कंसिस्ट ऑफ अपील अगेंस्ट अ जजमेंट ऑफ द सेशन जज और जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो जजमेंट होता है, इसका जस्ट नीचे वाला लेवल जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, इसका जजमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई अपील किया दैट विल कम अंडर अपीलेट जुडिडिक्शन। वो कैसे केस में अपील किया जा सकता, वेयर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 7 ईयर। सपोज किसी ने डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सिविल केस के लिए, सेशन जज होते हैं वो क्रिमिनल केस में। तो इन केस ऑफ अपीलेट जुडिडिक्शन हम को बोले तो हाई कोर्ट को आएगा, कोई अगर सेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो सेशन जज किसी को 7 साल से ज्यादा सजा दे दी तो वो अपील कर सकता एज अपीलेट जुडिडिक्शन इन हाई कोर्ट। सेकंड पॉइंट, ए सेंटेंस ऑफ डेथ कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड बाय ए सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो सेशन जज होते हैं वो डेथ सेंटेंस कभी फाइनल नहीं कर सकते विदाउट कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट का बिना परामर्श से। ओके, तब हम जानते हैं तो अपीलेट जुडिडिक्शन में सिविल केस में जो केस डिस्ट्रिक्ट जज से कोई डिस्ट्रिक्ट जज के अगेंस्ट में जो अपील होगा वो हाई कोर्ट में अपीलेट जुडिडिक्शन में आता है। क्रिमिनल केस में हम जानेंगे कोई अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्रिमिनल केस के हेड होते सेशन जज के अगेंस्ट में, सेशन कोर्ट के अगेंस्ट में ये भी अपील हो सकता अगर सेशन जज किसी को 7 साल से ज्यादा सजा दे दिए। ये केस। सेकंड केस, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे दिए, वो दे नहीं पाएंगे, वो विदाउट द सेंटेंस ऑफ डेथ कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड बाय सेशन जज,
without the confirmation of the High Court. Okay. Then in this case, enforcement of fundamental rights like Supreme Court same thing. ये भी हाई कोर्ट रीट भेज सकते वो कंसर्न पार्टी को. ए रीट इज एन ऑर्डर फ्रॉम ए जुडिशियल अथॉरिटी. ओके, ऑफेंडिंग पार्टी के साथ वो पास वो रीट भेज सकते. देन एडवाइजरी जुडिशरी, द हाई कोर्ट कैन एडवाइस एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर और गवर्नर इफ दे सीक इट ऑन मैटर्स ऑफ लॉ. ओके, हाई कोर्ट का भी एडवाइस भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिडिक्शन, हाई कोर्ट का भी एडवाइजरी जुडिडिक्शन होता है. देन रिवाइजरी जुडिडिक्शन, द हाई कोर्ट कैन कॉल फॉर ए रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इसका लोअर लेवल का कोर्ट का. दिस इज डन बिकॉज द हाई कोर्ट फील्स दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैड नो जुडिडिक्शन टू ट्राई दैट केस और इट हैज नॉट अलाउड प्रॉपर प्रोसीड्यूर. वो अगर फील करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो ठीक तरफ से विचार नहीं हुआ या वो विचार करने लायक नहीं है, तो अब हाई कोर्ट ये केस को अपने तरफ ले सकते, उन्हें कहा जाता है रिवाइजरी जुडिडिक्शन. इन सच केस द हाई कोर्ट रिव्यू द केस एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इट. दिस इज नोन एज रिवाइजरी जुडिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, court of record, then judicial review. Like the Supreme Court, the High Court also act as the guardian of the Constitution in state level. If it finds any law, executive order or any ordinance against the provision of the Constitution, like Supreme Court, it can declare it null or void. Thus, it controls both legislature and executive. जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के में कहा था, हाउ सुप्रीम कोर्ट कैन कंट्रोल बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बाय इट्स जुडिशियल रिव्यू. सेम थिंग ऑल्सो हाई कोर्ट हैज ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू टू कंट्रोल बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. दैट इज सिमिलर लाइक द सुप्रीम कोर्ट. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, like Supreme Court, the High Court is also called the court of record. All decision and decrees मतलब official orders issued by the High Court are printed and kept as a record for the future reference by the court as well as by the lawyers. Supreme Court में जो था High Court में वही है, for future reference. So High Court is also known as the court of record. But final court of record is Supreme Court. एक्चुअली हाई कोर्ट में जो चीज होता है ज्यादातर चीज सुप्रीम कोर्ट में होता है. हाई कोर्ट के नेक्स्ट लेवल होते हैं सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर और गार्डियन ऑफ जुडिशियल सिस्टम और गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेचर सो फॉर जुडिशियल मैटर इज कंसर्न. ओके, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से हम फर्स्ट देखेंगे the courts at district level and below are known as subordinate court. हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इसके नीचे जो कोर्ट होते हैं उससे कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. अच्छा, तो एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज 3 टाइप ऑफ कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रेवेन्यू. वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ रेवेन्यू. ये थोड़ा याद रखना. तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट होते हैं द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. तो हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिविल केस के लिए जो कोर्ट होता है वो होता है द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. ओके, सो ये कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में अपील, कहाँ का अपील सुना जाता? अपील अगेंस्ट द सिविल जज और सब जज. इसका नीचे वाला कोर्ट होता है सिविल जज का कोर्ट. सिविल जज का अपील तो डिस्ट्रिक्ट जज, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में अपील होता है. ओके, अच्छा, यूजुअली द डिस्ट्रिक्ट जज आल्सो एक्ट एज ए डेप्यूटी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डुअल पावर. In that capacity, he maintains law and order and supervises collection revenue and tax from the district. Okay, तो जैसे वो दोनों काम करते हैं, लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव.
तब उन्हें जब माने जो डिस्ट्रिक्ट जज का डबल पावर होता है। यूजुअली द डिस्ट्रिक्ट जज also act as a deputy commissioner and district collector. In such capacity, he maintains law and order and supervises collection of revenue and taxes from the district. Thus, he possesses certain administrative power in addition to judicial power. याद रखना, जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, he has both administrative power and judicial power. दो लाइन माने दोनों में, खाली जुडिशियल सिस्टम में नहीं, खाली डिस्ट्रिक्ट जज का दो माने डुअल पावर होता है, और बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एज वेल एज जुडिशियल पावर। ओके, देन इसके बाद आया सब जज। सब जज क्या होता है? सेकंड लेवल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। सब जज डिस्ट्रिक्ट माने कोर्ट ऑफ सिविल जज और सब जज। एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, दैट इज मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट जो इसका लोअर लेवल कोर्ट, इसका अपील कहाँ पे माने होता है? कोर्ट ऑफ सिविल जज और सब जज कोर्ट में विचार होता है। ओके, तो अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेवल लोअर कोर्ट होता है मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट का अपील किसमें माने नेक्स्ट लेवल में सब जज कोर्ट व सिविल जज का कोर्ट में अपील होता है। सब जज कोर्ट का अपील डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में अपील होता है। डिस्ट्रिक्ट जज का हाई लेवल का अपील हाई कोर्ट में अपील होता है। हाई कोर्ट का अपील सुप्रीम कोर्ट में होता है, अपील होता है। सो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। ओके, देन एक चीज अपॉइंटमेंट। द जजेस एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द सिविल कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द स्टेट जुडिशियल सर्विस। एक स्टेट जुडिशियल सर्विस एक होता है और गवर्नर अपॉइंटमेंट देते हैं। देन इन केस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट को मैंने बताया, माने डिस्ट्रिक्ट लेवल में हाईएस्ट कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, इसके बाद होता है कोर्ट ऑफ सिविल जज और सब जज, इसके बाद होता है मुंसिफ कोर्ट। ऐसे क्रिमिनल केस में सबसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हाईएस्ट कोर्ट होता है द कोर्ट ऑफ सेशन जज। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ सेशन जज, हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। बी केयरफुल। सो सेशन जज का कोर्ट होता है, इट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। यूजुअली द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ सिविल कोर्ट एक्ट एज ए सेशन जज हु इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं इनका भी पावर होता है, वो सेशन जज होके क्रिमिनल केस को भी हैंडल करते हैं। एक लोग दो पावर माने बोथ क्रिमिनल केस सिविल केस दोनों हैंडल करते हैं इन द सेशन कोर्ट। ओके, तो सेशन कोर्ट का जो जज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज, यूजुअली डिस्ट्रिक्ट जज का डुअल पावर माने डिस्ट्रिक्ट जज एज वेल एज इन सिविल केस डिस्ट्रिक्ट जज, इन क्रिमिनल केस ही एक्ट्स एज ए सेशन जज। एक ही लोग दो पावर एंजॉय करते हैं। अच्छा, इन द सेशन कोर्ट सीरियस केसेस ऑफ मर्डर, रॉबरी, डकैती आर ट्राइड। यही सब चीज माने होता है सेशन कोर्ट में विचार होता है। ओके, तो अब इसका जो स्टेप्स ऑफ होता है, फर्स्ट होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ओके, हम इसको एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है, इसके बाद आ गया तब सेशन कोर्ट के जस्ट नीचे आएगा कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तब इसके बाद नीचे आएगा कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तब ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट सबसे नीचे लेवल कोर्ट, इनका माने अपील माने उससे अपील जाएगा कहाँ है? कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अपील जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन जज। ओके, ये हो गया क्रिमिनल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे हेड क्रिमिनल कोर्ट होता है सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे हेड सिविल कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, वहां था कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सेकंड इसके नीचे कोर्ट ऑफ सिविल जज और सब जज, इसका नीचे माने मुंसिफ कोर्ट। यहाँ होता है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल केस में
कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कहा जाता, सेशन कोर्ट, इसका नीचे कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, देन इसका नीचे कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। याद रखना लोअर लेवल का अपील नेक्स्ट हायर लेवल में, नेक्स्ट हायर लेवल का अपील नेक्स्ट हायर लेवल में, ऐसे अपील होते रहता है। ओके, देन मैंने ये भी क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्ट, appeals can be made in higher court against the orders of the lower court, appeals against the judgment of the district court, civil courts or session court, criminal court are permitted to the high court। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट, ये दोनों का अपील सीधा हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट, द जजेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द स्टेट जुडिशियल सर्विस। सेम थिंग, वो वहां जो सिविल केस में मैंने कहा था, जो सिविल जज, जो सिविल कोर्ट का जो होता है, सिविल कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है वो क्रिमिनल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में भी जज को, जज जो सारे जज के अपील ना अपॉइंटमेंट सेम टाइप सेम प्रोसीड्यूर में होता है। देन कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, तब इसका सबसे मैं असेंडिंग ऑर्डर करता, ये मैंने वो दोनों ये जो किया, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ सेशन जज, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बताया, अभी असेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा कोर्ट ऑफ रेवेन्यू। कोर्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, दीज कोर्ट्स डील्स विद केसेस रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। सो गांव को सब आते हैं ना, जो जमीन का जो हम टैक्स देते हैं, जो आरआई ऑफिस में वही होता है, वो इनका हेड होता है तहसीलदार कोर्ट। तो पहले होता है लोअर लेवल से मैं असेंडिंग ऑर्डर जाता हूँ, पहले तहसीलदार कोर्ट, दिस इज द लोएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। ये तहसीलदार इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स। हम लोग का प्रॉपर्टी टैक्स हम तहसीलदार को देते हैं, एक्चुअली पहले आरआई लोग लेते हैं, लेकिन भाया तहसीलदार, वो तहसीलदार के पास पहुंचता है, क्योंकि सबसे लोअर कोर्ट होता है तहसीलदार कोर्ट। देन कलेक्टर कोर्ट, द कलेक्टर इज generally the deputy commissioner of the district, he looks after the revenue department in the process of assessment and collection of revenue, he looks after the overall administration of the district, he hears appeals against the decision of the तहसीलदार। तो तहसीलदार का अपर लेवल हो गया ऑफिस ऑफ द कलेक्टर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हेड हुए कलेक्टर। सोफर माने ये होता है जो रेवेन्यू कोर्ट में सबसे सोफर रेवेन्यू कोर्ट इज कंसर्न, सबसे लोअर लेवल में रहा तहसीलदार कोर्ट, इसके बाद कलेक्टर कोर्ट, इसके बाद नेक्स्ट लेवल कलेक्टर्स कोर्ट हो गया, इसके बाद कमिश्नर्स कोर्ट। ये कमिश्नर जनरली है जो 3 to 4 डेप्यूटी कमिश्नर्स अंडर हिम, ही लुक्स आफ्टर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन ए पर्टिकुलर डिवीजन। तो वो पर्टिकुलर डिवीजन, ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन बना गया, तब उसी में कुछ होंगे डेप्यूटी कमिश्नर, तब इनका एक कोर्ट होगा। दे आर रेस्पॉन्सिबल टू माने फॉरवर्ड देयर व्यूज और माने सो फार रेवेन्यू इज कंसर्न टू द कलेक्टर कोर्ट, क्योंकि कलेक्टर कोर्ट का नीचे रहते हैं डेप्यूटी कमिश्नर कोर्ट। ओके, कमिश्नर कोर्ट, कमिश्नर के पास कुछ डेप्यूटी कमिश्नर रीजन वाइज रहते हैं। तो कमिश्नर कोर्ट के बाद आते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सबसे ऊपर वाला, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू इन ए स्टेट, इट वर्क्स डायरेक्टली ऑन अंडर द हाई कोर्ट। ओके, मैं अगेन बताता हूँ, सबसे नीचे रेवेन्यू कोर्ट जो टैक्स अदाई करते हैं, सबसे नीचे तहसीलदार कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में तहसीलदार कोर्ट ना कलेक्टर कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट के बाद क्या होता है 2-3 कलेक्टर को लेके एक कमिश्नर कोर्ट होता है। कमिश्नर भी कुछ डेप्यूटी कमिश्नर रखते हैं अपने अंडर, माने वो क्या करते हैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट का माने कलेक्टर इनका अंडर रहते हैं। तो अब इसके बाद फाइनल कोर्ट होता है
कौन होता है? रेवेन्यू का फाइनल कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. It is the highest authority in the field of revenue in a state. It works directly under the High Court. Okay. Then or small portion, that is Lok Adalat. Lok Adalat is a people's court. They were set up to provide quick justice to the poor who are not in a position to engage lawyers. जो लॉयर एंगेज करने पर ज़्यादा पैसा खर्चा होता है तो लोग झमेला में नहीं जाते हैं, तो वो लोक अदालत इसीलिए हुआ है. लोक अदालत रिजॉल्व्स केसेस बिफोर दे हैव गॉन टू एनी कोर्ट एंड ट्राई टू सॉल्व डिस्प्यूट थ्रू एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग. वहाँ कोई लॉयर वगैरह नहीं होते हैं, सीधा जज अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो केस करके वो डिस्प्यूट का समाधान करते हैं. द फर्स्ट लोक अदालत was inaugurated at जूनागढ़ in गुजरात in October 1982. इसका पर ध्यान दिया जाए. The first लोक अदालत was inaugurated at जूनागढ़ गुजरात in October 1982. Okay. Then advantages of लोक अदालत very important. 2 पॉइंट कम से कम याद रखना. ये लोक अदालत delivers fast and inexpensive justice. पैसा खर्चा नहीं होता. Different लोक अदालत have relieved the heavy load of work of the lower court. सब कोर्ट में जो बहुत जाम रहता, बहुत वर्कलोड रहता, लोक अदालत वो इनका वर्कलोड को कम कर देते. ये लोक अदालत वर्क्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग. एज ए रिजल्ट बोथ द पार्टीज फील सैटिस्फाइड. स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लोक अदालत केस डिस्प्यूट समाधान करते हैं. Much time is saved in the settlement of a dispute by the लोक अदालत. लोग साल भर क्या करते, कोई भी काम के लिए वो कोई केस इतना जल्दी समाधान नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता, लेकिन लोक अदालत में एक दिन में वो डिस्प्यूट खत्म हो जाता. Not only time but much money is also saved under the लोक अदालत because long litigation proves very costly. क्योंकि बिकॉज लॉन्ग लिटिगेशन प्रूव्स वेरी कॉस्टली, इसीलिए लोक अदालत इन लोक अदालत माने नॉट ओनली टाइम बट ऑल्सो मच मनी इज सेव्ड. ओके, सो एनी हाउ, सो टुडे आई कंप्लीटेड द यूनियन जुडिशियरी, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट. आई होप you will get one question. Probably you will get one question if you cover these 3 sections. Okay, hoping you all the best. I remain. Thank you. Yeah.